Good evening, my Ishanya friends, all my guests. Wish you a very happy Friendship Day. Vastu is a science of architecture which was originated from India. Our ancient scholars have combined five Panchabhutas, namely earth, fire, water, air, and space, with directions and spatial characteristics in such a way that a flow of positive energy is created in our house or factories. This flow of positive energy impacts our physical and emotional health to a great extent. Over the years, people have really grown to use Vastu Shastra for better life. While it is not possible to implement all the rules of Vastu Shastra, let us evaluate the key principles which should not be missed during buying or constructing a house or a factory. Friends, we are very fortunate today to have with us famous Vastu and astrologer expert Mrs. Riddhi Behl from Delhi. Her vast knowledge and experience shall really answer most of our queries. Let's welcome Riddhi Behl ma'am. Today I am missing Honorable Secretary Rotarian Naresh Baldava as he is out of station and unable to join us. On his behalf, I make the club announcement. Next Sunday, 9th August, 4 p.m. onwards, we are having a session by Swami Gyan Vatsalji from Swaminarayan, BAPS. Topic of the session is spiritual intelligence, practical aspects of spirituality in modern life. Friends, this week we are celebrating birthday of our members. Today, we are celebrating birthday of Rotarian Sanjeev Gandhi, Rotarian Hitesh Jhawar. Very happy birthday to both of you. On 4th August, Rotarian Arun Lakhani. On 6th August, Rotarian Swati Bhartia. Rotarian Deepa Agrawal. On 7th August, Rotarian Satish Mantri. On 8th August, Rotarian Subhash Lauti. Wish them a very, very happy birthday. For further proceedings, now I call Rotarian Manoj Rathi. Hello friends, a very warm welcome to all of you. Riddhi madam is with us. So before we start the program, let me introduce to you with Riddhi ma'am. She is a granddaughter of Pandit Asti by the King of Jaipur, Madhav Singh. Riddhi ji has done MBA from Symbiosis Institute of Management. She holds Acharya degree in astrology and Vastu Shastra. She is also done the PhD in astrology and Vastu Shastra. She is known personality in this field across the globe since last 14 years. Her work and articles are regularly published in leading newspapers and magazines, as you had already seen in the WhatsApp group. Her programs are aired on various TV channels. She conducted talks on Vastu at many well-known organizations, including the Melbourne Exhibition Center. She had awarded with many awards, to name few: Best Astrologer by Wedding Mantra, Iconic Motivational and Spiritual Thought Leader by Economic Women Forum, Women Excellence Achiever Award, Women Orator Award by Federation of Women Entrepreneurs, Nari Samman Award, and the best part is Astrologer of the Year 2018. She is felicitated by our President of India, Ram Nath Kovind, for her work in Vastu and astrology. And the list is endless. It will take me
another 15 minutes if I go on reading this, but I don't want to waste our time. And so please welcome our guest today with a big round of applause, Speaker Riddhi Bahel. Before I hand over the mic to Riddhi ji, there is one small announcement for all. आप जैसे जैसे रिद्धि जी को सुनते जाएंगे, आपके दिमाग में कहीं ना कुछ क्वेश्चंस जनरेट होते जाएंगे। तो रिद्धि जी अपने टॉक में वो क्वेश्चंस के जवाब तो आपको देते रहेंगी, बट आपकी स्क्रीन पे नीचे के साइड में अगर देखेंगे तो एक Q&A का ऑप्शन है, क्वेश्चन एंड आंसर का ऑप्शन है। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस जनरेट होते हैं आप वहां पर पुट करते जाइए, एंड रिद्धि जी उसे देखते रहेंगे और अपने टॉक में उसके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। अगर टाइम की कमतरता के कारण हम लोग कोई क्वेश्चंस नहीं दे पाए तो हम हमारे जो मैगजीन है हमारा गुलमोहर, उसके अंदर उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड आंसर्स विल बी गिवन बाय द रिद्धि मैडम। सो रिद्धि मैडम को देने के पहले कल का एक वाक्य आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। कल मैं एक मेरे फ्रेंड के पास में गया, बहुत उदास बैठा था। मैंने पूछा यार क्या प्रॉब्लम है, क्यों उदास बैठे हो? तो बोलता है यार मुझे घर के प्रॉब्लम है, घर से मैं बहुत परेशान हूँ। तो बोला यार तेरे घर का वास्तु चेक करवाना पड़ेगा, और वैसे भी संडे को रिद्धि मैडम आ रहे हैं हमारे पास में, तो उन्हीं से आपका घर का वास्तु चेक करवा लेते हैं। तो बोला यार वास्तु शास्त्र का ही तो परेशानी हो रहा है। बोला ऐसा क्यों? अरे यार तेरे भाभी जी ना आजकल कोई भी वस्तु को शस्त्र की तरह यूज कर रही है। तो लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिद्धि जी हमारे बीच में है और वो आपके पूरे थॉट्स क्लियर करेंगे। सो ओवर टू रिद्धि मैडम। थैंक यू योगेश जी, ये जो बहुत अच्छा था, मैं भी इसको यूज करूंगी। मुझे नहीं पता था कि वस्तु को शस्त्र की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, नमस्कार सभी लोगों को। मैं कुछ महीने पहले लॉकडाउन से, बल्कि जब शुरू हुआ था उससे कुछ दिन पहले ही मैं नागपुर भी आई थी। वहां पे भी एक सेशन था, वहां पे भी मुझे इनवाइट किया गया था और वहां पे भी फेलिसिटेट किया गया था। आज फिर से नागपुर वासियों से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज हम बात करेंगे वास्तु की। तो सबसे पहले वास्तु है क्या चीज, ये सब लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि वास्तु है क्या। और अगर जैसा कि मैं कहती आ रही हूँ कि वास्तु और ज्योतिष जो है ये एक साइंस है, तो ये साइंस अगर है तो किस तरह की साइंस है और किस तरह से जो है ये हम लोगों को मदद कर सकती है, हमारी रोजमर्रा की जो हमारी दिक्कतें होती हैं या जो हमारे लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से जो है हम वास्तु के द्वारा उनसे हम जो है फायदा उठा सकते हैं और अपनी दिक्कतों से निजात पा सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि ये शब्द बताता है वास्तु, ये दो शब्दों से मिलके बना है, वास और तु, यानी कि जहां आप वास करते हैं, वेयर यू रिसाइड। अब चाहे वास्तु को लेके लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जी मतलब सिर्फ वास्तु क्या सिर्फ घरों के लिए ही अप्लाई होता है, जहां हम रहते हैं क्या रेजिडेंस के लिए ही है? ऐसा नहीं है। जो भी जगह, जो भी स्ट्रक्चर या जो भी कॉम्प्लेक्स आप यूज कर रहे हैं, चाहे आप उसको अपने रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हैं या आप उसको अपने काम के लिए, कमर्शियल एस्पेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, उस जगह पे वास्तु अप्लाई बिल्कुल 100% होता है और उस जगह का जो वास्तु होता है उसका असर आप पे 100% होता है। अब वास्तु आया कहां से? देखिए, वास्तु जो है वो वेदों का हिस्सा है, उसको वेदांग कहा गया है। आयुर्वेद वो भी जो है वेदों का हिस्सा है और आयुर्वेद जो है वो हमारे फिजिकल वेलबींग से लिंक्ड है। आप सबको ही पता होगा, कफ, वात और पित्त, जब भी इन तीनों तत्वों में से किसी भी तत्व का इम्बैलेंस होता है तो हम बीमार पड़ते हैं। अब मैंने आयुर्वेद का जिक्र क्यों किया और ये कफ, वात और पित्त का क्या वास्तु से कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है, 100% कनेक्शन है। मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि वास्तु जो है वो भी वेदों का ही हिस्सा है, वो भी वेदों से आया है। अब जब वेद जो है वो हमारे सबसे पुराने लिखित स्क्रिप्चर्स हैं। वेदों का देखिए धर्म से कहीं से भी कोई संबंध नहीं है। वेदों में जो लिखा गया है, वेद जो है बहुत ही लॉजिकल है और बहुत ही साइंटिफिक है। उनमें ये लिखा गया है कि हम इंसानों की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जब से हम इस दुनिया में आए हैं और जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे।
जैसे कि ह्यूमन जो लाइफ स्पैन है उसको भी 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। बाल अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों अवस्थाओं में बताया गया है कि हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार के प्रति, सोसाइटी के प्रति, हमारे खुद के प्रति क्या क्या होनी चाहिए। तो वास्तु भी जो है इन्हीं वेदों का हिस्सा है, जो कि बहुत ही लॉजिकल है, जो कि बहुत ही साइंटिफिक है। आज से शायद हजारों साल, 5000 साल पहले लिखे गए थे, पर आज भी उतने ही वैलिड है। और जब तक ये ह्यूमन रेस रहेगी तब तक इनकी वैलिडिटी रहेगी, तब तक जो है ये अप्लाई किया जा सकता है। तो वास्तु जो है जी वहां से आ रहा है। अब वास्तु एग्जैक्टली है क्या और ये फंक्शन कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि जी ये हम नहीं मानते हैं, या ये तो बेवकूफ बनाने का तरीका लगता है, क्या सही में ऐसा होता है। देखिए, आप माने या ना माने ये आपकी बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। आज मेरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों से बातचीत करने का ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी सोच बदल दें या आप कुछ जो अभी तक आप नहीं मान रहे थे वो मानना शुरू कर दें। पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है और हमेशा से ये रहा है कि ज्योतिष और वास्तु हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। जैसे मैंने कहा, वेदों का हिस्सा रहा है, तो हमारी संस्कृति का एक भाग रहा है। और हम भारतवासियों, भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम हमारी जो शास्त्रों में जो साइंस है उसको पूरी तरह से जानें। तो वास्तु की भी जो है हमें जानकारी पूरी होनी चाहिए कि ये क्या है। बाकी आपकी मर्जी, माने या ना माने वो अलग बात है। तो वास्तु, जैसा मैंने कहा कि जी इट अप्लाइज कि जहां तू वास करता है। अब देखिए, जो भी चीज इस दुनिया में है, चाहे वो हम इंसान हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे जानवर हैं, सब जो है 5 तत्वों से बने हुए हैं। हम सभी को पता है वो 5 तत्व क्या है। और हम सब जो है अल्टीमेटली कहते हैं ना, मिट्टी से बन के आए हो मिट्टी में मिल जाओगे, मतलब वो 5 तत्वों से ही बने हैं और 5 तत्वों में ही हम विलीन हो जाएंगे। तो 5 तत्वों का हमारे जीवन पे, हमारे ह्यूमन बॉडी के फंक्शनिंग पे बहुत असर होता है। तो जिस तरह से इन 5 तत्वों का असर हम ह्यूमन बॉडी पे, हमारी बॉडी पे होता है, वैसे ही इन 5 तत्वों का असर जो स्ट्रक्चर, जो मकान या जो दुकान या जो भी ऑफिस है मेरा, उनके ऊपर भी होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कफ, वात और पित्त। ये कफ, वात और पित्त क्या है? ये 5 तत्व ही हैं। कफ यानी कि वाटर, जल, वात यानी कि एयर, हवा, पित्त यानी कि आग यानी कि गर्मी। तो ये 5, और बाकी जो 2 तत्व हैं उनका भी हम पे असर होता है, पर जो बॉडी में ये 3 तत्व जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरह से स्ट्रक्चर में भी, जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी ये 5 तत्व होते हैं। अब वास्तु जब हम बात करते हैं तो लोग अक्सर यही अंदाजा लगाते हैं कि जी 4 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाओं को का ही में ही जो है वास्तु का सारा खेल होता है। बिल्कुल सही है, 4 दिशाएं होती हैं, पर जब हम वास्तु करते हैं तो हम वो 4 दिशाओं को फर्दर 8 में और फिर फर्दर 16 दिशाओं में बांट देते हैं। हर दिशा जो है वो कोई ना कोई तत्व के साथ लिंक है। जैसे कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट जो है वो जल तत्व में आती है। साउथ या साउथ ईस्ट जो है वो अग्नि तत्व है। वेस्ट दिशा जो है वो वायु तत्व में आती है। ईस्ट जो आता है वो हवा के, एयर एलिमेंट, सॉरी वो जो है जल, आयु, वायु, अग्नि, आकाश तत्व में आता है। तो ऐसे करके जो 16 दिशाएं हैं वो जो है उनके अलग अलग तत्व होते हैं। तो इस तरह से जो है जब हम स्ट्रक्चर का वास्तु पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो आपकी बिल्डिंग है या जो भी स्ट्रक्चर आपका है वो इन तत्वों के साथ अलाइंड है कि नहीं है। अब अलाइंड से मेरा मतलब, जैसे कि मान लीजिए, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि जी हम कोई मकान लेने जा रहे हैं तो किसी वास्तु वाले ने कहा अरे इसका तो इतना, ये दक्षिण हिस्सा जो है वो कटा हुआ है, या इसका जो है नॉर्थ, उत्तर दिशा जो है वो ज्यादा बढ़ी हुई है, या प्लॉट जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, उसमें चारों दिशाएं सही नहीं है। ऐसी चीजें आपने अक्सर सुनी भी होंगी या आपने देखा भी होगा कि आड़ा टेढ़ा प्लॉट है। या कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि अरे जब से मैं इस घर में आया मेरी तो तबीयत ही बहुत खराब हो रही है, या मैं जब से इस घर में आया मेरी तरक्की बहुत ज्यादा होने लग गई है। तो ऐसा जो ये सब कुछ होता है वो क्यों होता है? देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा, मैं फिर से कह रही हूँ, इन सब के पीछे साइंस है, सबके पीछे लॉजिक है, सबके पीछे कारण है।
जो भी वास्तु में होता है या जो भी वास्तु के शास्त्रों में लिखा हुआ है, उन सबके पीछे लॉजिक और रीजन के साथ ही लिखा हुआ है। ऐसे नहीं है कि जी वास्तु के जो ऋषि थे, जो जानकार थे, उन्होंने जो है उठे एक दिन और उन्होंने जो है टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया कि जी अच्छा ऐसा है तो ये होगा, ऐसा है तो ये होगा। ऐसा नहीं है, इट इज ऑल वेरी मच रिसर्च। उसके अलावा जैसा कि सर ने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा था कि मैंने पीएचडी की हुई है सब्जेक्ट में, बहुत सारे रिसर्चेस का मैं हिस्सा रही हूँ। हम जब रिसर्च करते हैं तो हम कम से कम 500 से 1000 नक्शे लेते हैं और उनके ऊपर रिसर्च करते हैं और फिर कोई फैसला देते हैं कि अगर ऐसा हुआ है इस घर में रहने वाले लोगों के साथ तो वो इस कारण से हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हर चीज के पीछे कारण है और हर चीज के पीछे लॉजिक है। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे देखेंगे कि वास्तु का असर हम पे होता है या इसके पीछे की साइंस क्या है। देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन जो मैंने बताया वो जल तत्व होता है। अब जल हमारे जीवन में क्या रोल करता है? जल जो होता है वो पैसे से वो पैसा भी जल के तत्व में आता है। कहते हैं ना, पैसा पानी की तरह बह गया, तो पैसे को हमने जो है वो पानी से इक्विलेट किया है। तो नॉर्थ दिशा जो है वो पैसे की दिशा है। नॉर्थ दिशा जो है वो अपॉर्चुनिटीज की है कि मेरे को लाइफ में आगे मौके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नॉर्थ दिशा जो है वो हेल्थ की भी है। पानी, जल तत्व हमारे शरीर में कफ, वात और पित्त, जैसे मैंने शुरू किया था, कफ यानी कि वाटर, हमारे शरीर में 72% वाटर होता है। यदि वो 72% वाटर मेरे शरीर में अगर 78 हो जाए तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। यदि वो 72% 65 हो जाए तो भी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। सो 72%, यदि 72% ही रहे तो ही मेरी तबीयत ठीक रहेगी। ऐसा ही और एलिमेंट्स के साथ है। यही सेम चीज हमारे स्ट्रक्चर पे जिसमें हम रह रहे हैं उस पे भी अप्लाई होती है। तो यदि आपकी नॉर्थ दिशा बैलेंस है, वास्तु के हिसाब से सही है, ना ज्यादा है ना कम है, तो आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी। आपके घर में लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा नॉर्थ जो है वो हेल्थ से रूल करता है, नॉर्थ दिशा पैसे की दिशा होती है। प्लस जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज यानी कि मौके मिलना, तो यदि आपका नॉर्थ सही होगा तो आपको जीवन में अच्छे मौके मिलेंगे, सही समय पे सही मौका मिलेगा। होता है ना, हम में से बहुत से लोग कहते हैं अरे उस टाइम पे मुझे मौका मिला था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, या मुझे ऐसा काम का मौका मिलता तो देखो मैं क्यों नहीं ऐसा कर पाता। तो अगर आपको मौके नहीं मिल रहे हैं या आपको लग रहा है आपके हाथ से मौके निकल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके घर का नॉर्थ जो है वो वास्तु कंप्लायंट नहीं है। साउथ, जैसा मैंने कहा कि साउथ जो है वो अग्नि कोण है, वो हीट से हम साउथ को लिंक करते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि वास्तुशास्त्री कहते हैं, आजकल तो गूगल जिंदाबाद है, लोग गूगल में पढ़ के मुझे कहते हैं कि जी किचन जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए, जो कि अच्छा होता है। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही किचन क्यों होना चाहिए, आपने कभी सोचा है? इसके पीछे लॉजिक है। सूरज जो है वो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में डूबता है। ईस्ट से वेस्ट जब वो ट्रैवल करता है तो वो साउथ से होता हुआ जाता है। साउथ ईस्ट में सूरज जो है दिन के 12 बजे होता है। दिन के 12 बजे की जो धूप होती है वो सबसे तेज धूप होती है, इसीलिए वो उस दिशा में, जो साउथ ईस्ट दिशा में जो जगह आएगी, जो भी आपका कमरा पड़ेगा, जो जगह पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। घर में गर्मी भी कहाँ होती है? सबसे ज्यादा किचन में होती है। तो इसलिए किचन जो है अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाया जाए तो वो अच्छा रहेगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो जोन ऑफ रिकवरी भी है। बहुत से आप में से बहुत से लोग जो बिजनेस में होंगे उन लोगों को ये शब्द बहुत प्रिय होगा, रिकवरी, क्योंकि जी लोग काम तो करवा लेते हैं पर पैसा नहीं देते। मेरा पैसा अटका हुआ है, और खास करके कोविड के बाद तो हम लोगों को ये दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है कि जी लोगों ने बहुत पहले से पैसा ले रखा है, दे नहीं रहे हैं, या मेरा काम ऐसा है जो कि उधारी पे चलता है, लोग पैसे नहीं देते। तो रिकवरी का जो जोन है वो साउथ ईस्ट जोन है। अगर आपका साउथ ईस्ट जोन में इम्बैलेंस होगा तो रिकवरी नहीं होगी। अब मैं बार बार ये इम्बैलेंस शब्द कह रही हूं, तो इम्बैलेंस से मतलब क्या है? देखिए, जैसे मैंने कहा साउथ ईस्ट जो है वो अग्नि कोण है, मतलब आग का कोण है, वहां पे गर्मी ज्यादा होती है। अगर अग्नि कोण में आप जल लेके आ जाएंगे, अब आग और जल, अग्नि और जल आपस में दोनों की प्रवृत्ति कैसी है? दोनों की बिल्कुल ऑपोजिट प्रवृत्ति है, ऑपोजिट नेचर है। आग जो है, आग को जो है पानी बुझा देता है। तो अगर आप
आग की जगह पे मतलब अग्नि कोण में अगर आप जल तत्व ले आएंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो क्या होगा, हमारे जो पैसे हैं, जो पैसों की रिकवरी है, या जो मेरी डिजायर है, डिजायर भी क्या होती है, इच्छा क्या होती है, इच्छा आग होती है, डिजायर को भी हम अग्नि तत्व कहते हैं। तो जो मेरे अंदर की जो इच्छाएं हैं या जो डिजायर है वो खत्म हो जाएगी। इस तरह से जो है हम चीजों को बैलेंस करते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक मेरे क्लाइंट है जो कि ज्वेलर है। अब ज्वेलरी का काम है तो उनके भी यही होता था कि जी उधारी पे काम होता था, लोग पैसे नहीं देते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी मेरे काम तो अच्छा चल रहा है, क्लाइंट भी बहुत है और चीजें जा भी रही हैं, पर पैसे देने में बड़ी दिक्कत होती है, रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। तो मैं उनके शोरूम पे गई। वहां मैंने देखा जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन था उनका, वहां पे उनका वाटर डिस्पेंसर पड़ा हुआ था। सिर्फ वो वाटर डिस्पेंसर वहां से हटा के दूसरी जगह रखने के बाद ही उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले, मतलब उनकी रिकवरी जो है बहुत आसानी से होने लग गई। तो वास्तु में जरूरी नहीं है कि हर बार जो है तोड़ फोड़ ही की जाए या चीजों को कोई बहुत मेजर चेंज किया जाए तभी रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सरल और आसान तरीकों से भी जो है रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। हर बारी तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं होती है। ये लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट होता है और अक्सर लोग बहुत डरते हैं किसी वास्तु कंसल्टेंट से बात करने के लिए। अरे नहीं नहीं, वास्तु वाले आएंगे तो सारा घर उथल पुथल कर देंगे। हमेशा ऐसा हो, ऐसा नहीं होता है। पर हाँ, आपको प्रॉब्लम की जड़ तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि समस्या क्या है तब तक उसका निवारण करना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग जब समस्या का निवारण की बात आती है तो बहुत से लोग कहते हैं जी क्रिस्टल लगा देते हैं या पिरामिड लगा देते हैं। देखिए, जब वास्तु शास्त्र लिखा गया था तब क्रिस्टल या पिरामिड नाम की चीज होती ही नहीं थी। इनफैक्ट मुझे याद है, मुझे नागपुर से एक लड़के ने फोन किया था जो कि वास्तु करता था और उसने मुझसे कहा था कि मैम मेरी नागपुर में पिरामिड बनाने की फैक्ट्री है, तो आप मेरे साथ टाई अप करेंगी क्या? तो मैंने उनको मना कर दिया था, ये कह के कि जी मैं पिरामिड और क्रिस्टल्स में नहीं बिलीव करती, ना ही मैं सजेस्ट करती। जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ पंच तत्वों का ही खेल है सारा। अगर आपके जैसे जिस तरह से आपके शरीर में आपके तत्व अलाइंड रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, उसी तरह अगर आपके घर में या आपके आसपास में जो पंच तत्व है वो आपके स्ट्रक्चर से अलाइंड रहेंगे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें पिरामिड या क्रिस्टल कोई कुछ नहीं करेगा। देखिए क्या होता है, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूं तो मैं ये बात थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि अधिकतर जो लोग होते हैं उनको या तो आधी नॉलेज होती है या बिल्कुल नॉलेज नहीं होती और वो समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं और शॉर्टकट्स में ज्यादा वो करते हैं। जब आप शॉर्टकट्स में आओगे, आपको अब क्लाइंट के पास जाना है, कोई ना कोई सोल्यूशन तो देना है, तो क्या कहोगे जी क्रिस्टल लगा लो, पिरामिड लगा लो। पर प्लीज आप लोग इन सब चीजों में मत पड़े। जैसा मैंने कहा, हर चीज का देयर इज अ रीजन बिहाइंड, हर चीज का जो सोल्यूशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जी वास्तु जो है साइंस भी है। आपने कहा साइंटिफिक किस तरह से है। देखिए, आप लोगों ने अक्सर ही सुना होगा, कहा कि वास्तु वाले ये कहते हैं कि जी सोना जो है, जब आप सोते हैं रात में तो साउथ की तरफ सर होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ सर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। देखिए, हम सबको पता है कि पृथ्वी में दो पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ये जो पोल है ये मैग्नेटिक है। पृथ्वी खुद से एक मैग्नेट है, एक चुंबक का एक गोला है पृथ्वी, मैग्नेटिक। ये जो पोल है, यहाँ पे जो है वो जो मैग्नेट का पुल है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे जो एनर्जीज जो पुल करती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं। अब जो हमारा शरीर है, इसमें जो है, जो हमारा हार्ट है, वो शरीर के बीचों बीच नहीं सिचुएटेड है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ सिचुएटेड है ना? है, आप लोग अग्री करते हैं? जो वेन्स, जो नर्व्स जो हैं, जो हार्ट से ब्रेन की तरफ जाती है वो बहुत महीन है, बहुत बारीक है। और जो हार्ट से नीचे पांव की तरफ जाती है वो फिर भी थोड़ी बड़ी है। जो लोग डॉक्टर्स हैं वो अग्री करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो लिमिटेड ही ब्रेन को जाना चाहिए। अगर एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा ब्रेन को ब्लड चला गया तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? इस चैट बॉक्स में आई कैन गेट अ येस और अ नो, तो मुझे समझ आएगा कि आप लोगों को बात मेरी समझ आई। तो जो मैं कह रही थी कि हार्ट जो है हाफ आप 3/4 बॉडी वे सिचुएटेड है और हार्ट से जो ब्रेन की वेन्स हैं वो बहुत महीन होती हैं, क्योंकि अगर ब्रेन में एक्स्ट्रा ब्लड गया तो ब्रेन को और हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। जब हम लोग एनीमिक होते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं? आपके शरीर में आयरन की कमी है। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर आयरन होता है
और मैंने जो कहा आपको, पृथ्वी जो है वो मैग्नेट है, और जो पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनमें जो है मैग्नेटिक पुल जो है वो बहुत ज्यादा है। तो जब आप साउथ की तरफ सर रख के सोएंगे तो मैग्नेटिक पुल जो है वो आपके बॉडी में से जो आयरन है उसको पुश करे, उसको पुल करेगा। एज ए रिजल्ट जो ब्लड फ्लो है वो हार्ट से सर की तरफ ज्यादा जाएगा। अब उससे क्या होगा, उससे हाई ब्लड प्रेशर होने की या ब्रेन हैमरेज होने की ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि साउथ की तरफ सर ना रखें, नॉर्थ की तरफ सर रखें। अब पोलैरिटी भी अलग होती है, जो लोग साउथ पोल में रहते हैं उनके लिए जो है नॉर्थ की तरफ सर रखना चाहिए। जो लोग नॉर्थ पोल में रहते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थ पोल में आता है, तो हमें साउथ की तरफ सर रखना चाहिए। देखिए, है साइंटिफिक, इट इज एब्सोल्युटली साइंटिफिक। एक और मिथ जो बहुत से लोग आके मुझसे पूछते हैं और जो कि बहुत बड़ा वहम है, कहाँ से शुरू हुआ वहम ये मुझे पता नहीं, पर इसका लॉजिक मैं आपको दे सकती हूँ। वो ये कि जी नॉर्थ फेसिंग अगर प्रॉपर्टी है तो वो बहुत अच्छी है, और साउथ फेसिंग अगर है तो वो बहुत खराब है। इनफैक्ट नागपुर से ही, आपके शहर से एक बिल्डर ने मुझे बताया था, उन्होंने कहा था मैडम साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी के तो भाव ही गिर जाते हैं और नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी के भाव जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इसके पीछे पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, ये क्या है कहानी। जो लॉजिक है, जो रीजन है वो ये है कि देखिए, जैसा मैंने कहा था कि सूरज जो है वो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में डूबता है और साउथ के थ्रू जाता है। तो और साउथ ईस्ट जो होता है वो सबसे गर्म जगह होती है, क्योंकि दिन की 12 बजे की धूप जो होती है वो साउथ ईस्ट में होती है। 3 बजे तक जो है सन पूरा साउथ में आ जाता है और 3 बजे के बाद फिर धीरे धीरे मूव करके वेस्ट में चला जाता है। तो जो साउथ सदर्न हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। अब हमारे जो इंडियन माइथोलॉजी में जो हमारे देवी देवता हैं उनको हम कहाँ बिठाते हैं, उनको हम कैलाश पर्वत पे बिठाते हैं, बर्फ के बीच में बिठाते हैं। जितने भी हमारे जो ये धार्मिक स्थल है, जो 4 धाम भी हैं, वो सब जो है ऊंचे पर्वतों पे है, पहाड़ों पे है, ठंडी जगह पे है। ये कहानियां है ना, हमने बचपन में भी सुनी होंगी कि जी अगर नर्क में जाओगे तो तुम्हें गर्म भट्टी में सेका जाएगा, तुम्हें गर्म कढ़ाई तेल में तला जाएगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे लिए नर्क जो है वो गर्मी है। हमारे हिंदुस्तान में गर्मी जो है वो ज्यादा पड़ती है, सर्दी जो कम पड़ती है, जबकि नागपुर आपके शहर में तो गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है। बहुत मैक्सिमम टेम्परेचर जो है कई बार गर्मियों में नागपुर का ही होता है। तो हमारे लिए हेल, हमारे लिए नरक जो है वो गर्म है, वो गर्मी है। अगर आप जो कोल्ड कंट्रीज हैं जैसे तिब्बत वगैरह, जो ठंडे देश हैं, उनकी कहानियां पढ़ेंगे तो उनकी माइथोलॉजिकल कहानियों में लिखा हुआ है कि यदि आप मरोगे, मरने के बाद अगर आप नर्क जाओगे तो आपको बर्फ की गुफा में बंद कर देंगे, आपको बर्फ की सिल्ली से बांध देंगे। मतलब उनके लिए ठंड जो है वो नरक है, उनके लिए गर्मी जो है वो स्वर्ग है, हमारे लिए उल्टा है। अब नॉर्थ दिशा में जो है सूरज नहीं दिखता है, नॉर्थ दिशा जो होती है वो ठंडी रहती है। तो इसलिए कहा जाता है कि नॉर्थ दिशा में अगर आपका घर रहेगा तो आपका घर ठंडा रहेगा। ये लॉजिक है, ये कारण है। इसका नॉर्थ का या साउथ का सक्सेस से या फेलियर से कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। कोई भी दिशा ये कहे कि 100% अच्छी होती है या 100% खराब होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर दिशा के साथ कुछ अच्छी चीजें होती हैं और कुछ अच्छी चीजें नहीं भी होती हैं, पर कोई भी दिशा 100% अच्छी या 100% खराब नहीं होती है। इनफैक्ट मिस्टर अमिताभ बच्चन के दोनों घर जो है वो साउथ फेसिंग है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनके घर जो है साउथ फेसिंग है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। साउथ फेसिंग, साउथ जो है वो उसका प्लैनेट है मंगल। मंगल जो है वो कारक है प्रॉपर्टी का। तो जो लोग प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं या जो लोग रियल एस्टेट में डील कर रहे हैं या जो कंस्ट्रक्शन का जिन लोगों का काम है, यदि उनका साउथ फेसिंग घर है तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। या जिन लोगों की कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रांग है, उनका यदि साउथ फेसिंग घर है तो वहां वो लोग बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। बल्कि साउथ दिशा तो दिशा है फेम की, सक्सेस की। तो यदि आपका घर साउथ फेसिंग है तो प्लीज घबराइए नहीं, परेशान मत होइए या ये मत सोचिए कि अरे नॉर्थ दिशा ही अच्छी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीजों के लिए नॉर्थ अच्छी है तो कुछ चीजों के लिए साउथ अच्छी है। और देखिए, ये बहुत जरूरी है, फेसिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितने घर के अंदर का वास्तु। मान लीजिए आपकी फेसिंग अच्छी है पर घर के अंदर अगर वास्तु हिला हुआ है तो उसको जो है उसका आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा। वही आपकी फेसिंग चाहे इतनी अच्छी नहीं हो, पर अगर आपके अंदर की जो सारी चीजें हैं वो वास्तु कंप्लायंट हैं तो आपको उसका बेनिफिट जरूर जरूर मिलेगा।
ठीक है, तो ये वास्तु हुआ और ये इसके पीछे के साइंटिफिक कारण हुए। अब बात आती है, बहुत से लोग पूछते हैं कि जी कमर्शियल वास्तु और रेजिडेंशियल वास्तु में क्या फर्क होता है, क्या दोनों एक ही चीज होती है, क्या उनके प्रिंसिपल्स एक ही होते हैं? देखिए, जब हम कमर्शियल वास्तु करते हैं तो कमर्शियल वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि आप काम क्या करते हैं। मान लीजिए आप ज्वेलर हैं, तो आपके लिए वास्तु के प्रिंसिपल्स थोड़े से अलग हो जाएंगे क्योंकि आप ज्वेलरी में डील कर रहे हैं। मान लीजिए आप कंसल्टेंट हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या आप एडवोकेट हैं, या आपका कोई कंसल्टेंसी का काम है, तो आपके लिए वास्तु प्रिंसिपल्स थोड़े अलग हो जाएंगे। आप जो है आपका जो है मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड काम है, आप स्कूल्स रन कर रहे हैं, आप ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, तो आपके लिए जो है अलग प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो जब हम कमर्शियल वास्तु करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपका काम क्या है, उसके हिसाब से वास्तु में चीजों की प्लेसमेंट की जाती है। सब जगह एक ही प्रिंसिपल लगा दिया जाए ऐसा नहीं होता है। यही रेजिडेंशियल वास्तु के लिए भी हम देखते हैं कि जी फैमिली साइज क्या है, कितने लोग हैं, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये होता है कि जी सब कोई चाहते हैं कि हमारे परिवार में आपस में घर वालों में बॉन्डिंग रहे, कोई हेल्थ इशू ना आए, फाइनेंशियली हम सब स्टेबल रहें, फाइनेंशियल ग्रोथ हम सबके साथ अच्छी चलती रहे। डज वास्तु फॉर मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट? सर, हाउ आर men and women different? Vastu is not different for men and women. It is the same, but yes, there are different directions for women and there are different directions for men. But then, coming to the point of commercial vastu and residential vastu, तो residential vastu में जैसे मैंने आपसे कहा कि घर में फैमिली मेंबर्स का साइज क्या है, किस एज ग्रुप के हैं। मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं जो कि पढ़ने वाले हैं, तो उनके लिए उनकी स्टडी टेबल कहाँ होनी चाहिए, उनका पढ़ाई के कमरे में कैसा कलर होना चाहिए, इन सब का बहुत असर होता है। एल्डरली लोग हैं आपके घर में, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए अलग कमरा देखा जाएगा कि भाई बुजुर्ग हैं तो हेल्थ इश्यूज बड़ों लोगों के साथ थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो हम सब ये कोशिश करेंगे कि जी वो स्वस्थ रहें। तो स्वास्थ्य के लिए कौन सी दिशा है वो हमें देखनी होती है। तो इस हिसाब से पहले ये देखा जाता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, उसके हिसाब से जो है वास्तु प्लान किया जाता है या वास्तु किया जाता है। तो रेजिडेंशियल जो कमर्शियल वास्तु जो है वो इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जी मैं इस फील्ड में था, अब मैंने जब से फील्ड बदली मेरा बड़ा अच्छा काम चलने लग गया। या उल्टा भी होता है कि जी जब तक मैं पीछे वो काम करता था तो अच्छा था, ये नया काम मैंने शुरू किया ये तो सही नहीं है। तो उसमें हो सकता है काम के साथ साथ जो वास्तु हो उस काम से संबंधित वो कैसा है ये भी देखने वाली चीज है। जैसे कि वेस्ट जो है वो शनि रूल करते हैं वेस्ट को। अब शनि के काम आ जाते हैं जैसे लोहे का काम है या पेट्रोलियम का काम है, क्रूड ऑयल का काम है। तो यदि आपका इन सब चीजों से संबंधित काम है तो वेस्ट दिशा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपकी वेस्ट दिशा जो है वो वास्तु कंप्लायंट होनी चाहिए। यदि वो वास्तु कंप्लायंट होगी तो आप उस काम में जरूर तरक्की करेंगे, राइट। तो ऐसे जो है ये वास्तु के प्रिंसिपल्स जो हैं वो ऐसे इस तरह से अप्लाई होते हैं। तीसरी चीज आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं शायद आप लोगों में से किसी ने वो क्वेश्चन जरूर आएगा, मेरे को मुझे उम्मीद है, वो ये क्योंकि मैं अभी हाल ही में नागपुर आई थी तो मैंने देखा था कि बहुत अपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं। और आजकल क्योंकि जगह की भी कमी हो रही है और फैमिली के साइज भी छोटे होते जा रहे हैं, आजकल जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही डिफरेंट है बजाय उसके जब वास्तु लिखा गया था उस समय जिस तरह के मकान बनते थे वो बहुत ही अलग तरीका होता था। तो क्या वास्तु जो मॉडर्न हमारा कंस्ट्रक्शन है या जो नए अपार्टमेंट्स हैं क्या वास्तु उन पे भी अप्लाई होता है? कितना एप्लीकेबल होता है? देखिए जैसा मैंने कहा कि आप जहां रह रहे हैं, आप चाहे एक कमरे में रह रहे हो एज अ पीजी, वास्तु उस पे भी अप्लाई होगा। एक कमरे से लेके एक बड़े मॉल तक या जो भी स्ट्रक्चर होगा उस पे वास्तु अप्लाई होगा। तो जो आजकल के जो मॉडर्न अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उन पे वास्तु 100% अप्लाई होता है। अब बहुत से लोग आके मुझसे पूछते हैं जी एक ब्लॉक में फ्लैट्स बने हैं, उन सबका डायरेक्शन तो एक ही है, सब में कमरे भी एक ही डायरेक्शन में बने हुए हैं, पर हर किसी के साथ तो क्या मतलब वही प्रॉब्लम्स होगी? ऐसा नहीं होता है कि सबके साथ की एक बिल्डिंग में एक ब्लॉक में जहाँ पे सारे एक के नीचे एक फ्लैट्स बने हुए हैं सबका डायरेक्शन एक ही है, कमरों का भी डायरेक्शन एक ही है, तो सब लोगों को एक सी ही प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं होता है। देखिए उस चीज में बहुत डिपेंड करता है। कलर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वास्तु। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था अग्निकोण। अब फायर का रंग क्या होता है? लाल होता है, लाल, ऑरेंज, मरून।
अब अगर आप, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अग्नि तत्व पे अगर आप जल ले आए, यानी कि अगर आपने आपके साउथ डायरेक्शन में अगर आपने ब्लू कलर कर दिया है तो आप अग्नि तत्व में जल लेके आ गए हैं, तो आपको साउथ दिशा से संबंधित जो है दिक्कत आएगी। या उल्टा मान लीजिए अगर आपने नॉर्थ दिशा में लाल रंग कर लिया है, या आपने कोई लाल रंग की चीज वहां पे ज्यादा रखी है, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर आपने रखे हुए वहां पे, तो आपको जो है हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि मेरे घर में नॉर्थ दिशा में इन्वर्टर, जनरेटर सब कुछ नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ था। अब इन्वर्टर में क्या होता है, इन्वर्टर में एसिड होता है। मेरे को जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लग गई। जब इन्वर्टर वहां से हटाया, जब जनरेटर वहां से हटाया, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम भी अपने आप दूर हो गई। जैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट जो है वो डायरेक्शन है रिलेशनशिप का, बॉन्डिंग का। परिवार में हम सब चाहते हैं कि परिवार के सदस्यों के बीच में बॉन्ड, आपस में प्यार जो है वो बना रहे। अब साउथ वेस्ट जो है वो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है। वहां पे यदि आप एयर एलिमेंट यानी कि हवा ले आएंगे, जैसे मिट्टी है, मिट्टी पे जब हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है, अपनी जगह से हट जाती है। तो यदि आप पृथ्वी तत्व पे, यदि आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप पेड़ उगा लेंगे या ग्रीनरी हरियाली ले आएंगे, तो आपके जो रिलेशंस हैं आपस में वो गड़बड़ हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको फायर और वाटर का मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने कहा कि जब अगर फायर पे अगर आप पानी डालेंगे तो वो बुझ जाएगी। या आप जल की जगह पे, जो जल तत्व है नॉर्थ डायरेक्शन में, यदि आप ब्राउन कलर या येलो कलर जो कि पृथ्वी का कलर है, अगर आप उस कलर की कोई चीज लगाएंगे तो वो भी नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए धरती पे पानी डालते हैं तो धरती उसको सोख लेती है। तो क्या होगा, आपके पास मौके आने बंद हो जाएंगे, पैसे की कमी होने लग जाएगी। तो ऐसे जो है हम वास्तु अप्लाई करते हैं। तो कलर्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब ये इस पर निर्भर करता है कि आपका किस रूम, किस जगह पे कौन सा रूम है, उसका क्या कलर है। और जैसे मैंने कहा, जब हम रेमेडियल वास्तु करते हैं, मैं स्पेशलाइज करती हूँ इस तरह के वास्तु में जिसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वाटर डिस्पेंसर हटाने से ही समस्या सॉल्व हो गई। तो ऐसे मेरे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जिसमें कि मैंने कुछ ज्यादा चेंज, कोई भी चेंज नहीं किया, बस ये कहा है कि जी ये कमरा इनको दे दिया जाए, आप कमरा चेंज कर लीजिए, या आप फर्नीचर की प्लेसमेंट जो है इधर से उठा के उधर कर दीजिए। इससे ही लोगों को इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो हर जगह मेजर चेंज करना पड़े ऐसा नहीं होता है। ओके, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिख के रखे थे आप लोगों के लिए कि आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में तो क्वेश्चंस है ही हैं, पर मैंने भी अपनी तरफ से कुछ थोड़ा सा होमवर्क करके रखा था कि आई एम प्लानिंग टू बाय अ ईस्ट फेसिंग प्लॉट साइज 40 डिग्री। अमित जी, ये हम इट इज गुड सर्टेनली, जैसा मैंने आपसे कहा, कोई भी दिशा खराब नहीं होती है या कोई भी दिशा बहुत अच्छी नहीं होती है, हर दिशा अच्छी होती है। अभी इस पे निर्भर करता है कि आप उस दिशा में क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आपने ईस्ट फेसिंग प्लॉट तो ले लिया, पर आपने जो है अपना स्विमिंग पूल या बाथरूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बना, सॉरी स्विमिंग पूल जो है आपने साउथ में बना लिया, तो फिर क्या फायदा हुआ ईस्ट फेसिंग प्लॉट लेने का। जैसे मैंने कहा, फेसिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसके अंदर जो आप प्लेसमेंट चीजों का करते हैं वो किस तरह से करते हैं। अब कुछ टिप्स की भी बात करें कि हम, जब मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों के बीच में, तो कुछ ऐसे जनरल टिप्स जो कि हम कर सके जिससे कि हमारे परिवार में आपस में प्यार बना रहे और जो रोजमर्रा की जो डेली की हमारी प्रॉब्लम्स है उनसे हम थोड़ा निजात पा सके। तो देखिए, आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक तो ये क्वेश्चन आता है कि जी हम ये कैसे देखें कि डायरेक्शन क्या है। तो आप आजकल हर फोन में कंपास का ऐप होता है, नहीं तो अगर आपके पास खुद के पास कंपास है तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है अपने घर के एंट्रेंस पे खड़े हो जाएं, इस तरह से खड़े हो जैसे कि जब बेल बजती है तो हम दरवाजा खोलने के लिए घर में खोलते हैं ना, तो हमारा फेस बाहर की तरफ होता है पर हम होते घर के अंदर। तो ऐसे आप खड़े हो जाएं घर के चौखट पे, दरवाजे पे, और कंपास को ऐसे हाथ में पकड़ लें स्टिल, और फिर देखें कि वो क्या दिशा दिखा रहा है। मतलब अगर मान लीजिए ईस्ट दिखा रहा है तो आपका घर ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ दिखा रहा है तो आपका घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल पूरी पूरी दिशा आए, कि ईस्ट आए या नॉर्थ आए, हो सकता है नॉर्थ ईस्ट आए, हो सकता है साउथ ईस्ट आए। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका घर जो है क्या फेसिंग है। फिर दूसरी चीज, आप अपने घर के बीचों बीच सेंटर में, रफ सेंटर, कोई जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे खड़े हो, पर रफ सेंटर में जो है आप खड़े हो जाएं और फिर से कंपास खोल के ऐसे रख ले अपने हाथ पे, और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके घर में नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है और वेस्ट कहाँ है।
आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इस चीज को आप चाहें तो नोट कर लें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नीली रंग की कांच की बोतल में एक मनी प्लांट लगा के रखें। इससे जो है आपके घर में पैसा हमेशा आता रहेगा। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो जैसा मैंने कहा रिलेशनशिप का है, बॉन्डिंग का है, और घर परिवार में हम चाहते हैं कि हमारे आपस में हर मेंबर में प्यार बना है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक तो कोशिश करें कि कोई भी नीली रंग की चीज या पानी, वाटर एलिमेंट ना हो। अब अगर जिन लोगों के है तो प्लीज घबराइए मत, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी रेमेडी बता सकती हूँ। तो अगर आपके साउथ वेस्ट, तो आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप जो है एक गोल्डन फ्रेम के अंदर अपने परिवार वालों की फोटो रखें, सारे परिवार की फोटो रखें। इससे जो है आपके परिवार के बीच में जो है आपस में जो है प्यार का माहौल जो है बना रहेगा, एक बॉन्डिंग जो है वो आपस में सबके बीच में रहेगी। बच्चों का जो रूम है, बच्चों के रूम में जो है जनरली व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर ही करें, और बच्चों के रूम में जो है मिरर, शीशा जो है खास करके ना लगाएं। देखिए शीशा जो होता है, एक तो वो वाटर एलिमेंट होता है, दूसरी चीज शीशा जो है वो बड़ा डिस्ट्रैक्टिव होता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं जा रही हूँ, यहाँ पे एक शीशा है, तो ऑटोमेटिकली मेरी नजर जाएगी, देखूंगी मैं अपने आप को कैसी लग रही हूँ, सभी के साथ होता है, राइट। तो मिरर्स जो होते हैं वो बड़े डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं, और दो मिरर्स आमने सामने बिल्कुल ना लगाएं। उससे क्या होगा, कंफ्यूजन होती है, मेंटल प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मैंने आपसे कहा एक शीशा है तो आप इधर देखेते हैं, अगर मान लीजिए दो शीशे हैं तो आप इधर देखेंगे, फिर आप इधर देखेंगे, फिर इधर देखेंगे, तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो खास करके बच्चों के रूम में तो अगर आप अवॉइड कर सके मिरर तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर लगाना ही है तो इस तरह से लगाएं, जैसे कबर्ड के अंदर लगा दें कि जब जरूरत है तो बच्चे ने उसको खोला, तैयार हो गए, जब जरूरत नहीं है तो उसको बंद कर दिया, या बाथरूम के अंदर लगा लें, तो वो जो है वो बेटर रहेगा। तो मिरर्स जो है, बहुत ज्यादा मिरर्स घर के अंदर एक तो ना लगाएं, बहुत बड़े बड़े मिरर्स ना लगाएं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी एंट्रेंस पे मिरर लगाना अच्छा होता है क्या? देखिए अगर आपका एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट है तो मिरर लगाइए, अगर आपका एंट्रेंस साउथ है तो प्लीज मिरर मत लगाइए। जैसे मैंने कहा मिरर जो है वो जल तत्व है, और साउथ के डायरेक्शन में मिरर लगाएंगे तो आप अग्नि में पानी जल को लेके आ रहे हैं, जो कि गलत होगा, राइट। तो ये एक चीज हुई। बच्चों के रूम्स में जो है बहुत ज्यादा ब्राइट या डार्क कलर ना लगाएं, और जैसा आजकल फैशन भी है कि जी जो दीवारें होती हैं उनमें दो अलग अलग दीवारों पे बड़े ब्राइट और अलग अलग कॉन्ट्रास्ट के कलर्स होते हैं, वो प्लीज मत करिए, वो भी जो है कॉन्सेंट्रेशन को तोड़ेंगे, कॉन्सेंट्रेट बच्चा नहीं कर पाएगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि आपने प्लांट्स उगाए हैं, आप बिल्कुल उगाइए, पर लाल रंग के गमले मत लगाइए। वहां पे या तो आप नीले गमले लगाइए, या हरे या सफेद गमले। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स, पेड़ पौधे जो है वो बिल्कुल भी ना लगाएं, दैट इज नॉट एडवाइज्ड। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट वो जो है सेविंग्स का जोन होता है, वहां पर जो है एक क्रीम कलर की, ऑफ वाइट कलर की एक गुल्लक रखें और उसमें कुछ पैसे डाल के रखें। यदि आपका लॉकर है ऑफ वाइट कलर का तो वो वहां रख लें, नहीं है वहां पे, मान लीजिए जैसे मेरे खुद के घर में जो डाइनिंग टेबल का एरिया है वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आता है, अब वहां पे तो मैं लॉकर नहीं रख सकती, तो मैंने क्या किया है, वहां पे एक सफेद रंग का एक बॉक्स रख दिया है, जिसको गुल्लक की जैसे मैं इस्तेमाल करती हूँ, और उसमें कुछ पैसे रख दिए। तो इससे क्या होगा, आपके घर में सेविंग्स जो है आपकी वो बढ़ेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा घरों के अंदर जो है बहुत ज्यादा कांटे वाले जो है पेड़ जो है वो ना रखें, कैक्टस खास करके बिल्कुल ना रखें, और बॉन्जॉय भी ना रखें। बॉन्जॉय इसलिए ना रखें क्योंकि बॉन्जॉय को हम क्या करते हैं, जो पेड़ की नेचुरल ग्रोथ है उसको काट के हमने छोटा बना दिया है, तो बॉन्जॉय रखने से हमारे घरों में जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो बॉन्जॉय जो है वो बिल्कुल भी घरों के अंदर ना रखें, राइट। और अब मेरे ख्याल से टाइम जो है थोड़ा सा हमें कम है, ये ऐसा टॉपिक है जिसके में मैं शायद एक पूरा दिन भी कम पड़ेगा, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है वो बताइए मुझे, उसमें हो सकता है बहुत से और लोगों के भी जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो जाए। सो प्लीज लेट मी नो द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू रिद्धि मैडम। इसके पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर राउंड, मेरी बहुत जो इच्छा हो रही है कि आपके लिए एक बार क्लैपिंग तो कर दी जाए थैंक यू सो मच, सेशंस के लिए। थैंक यू। एंड एक बहुत अच्छी बात जो आपने बताई कि अभी तक हम लोग ये सोचते थे कि अगर हमको वास्तु में चेंजेस करना है तो
स्टोन्स और पिरामिड के बिना हम कुछ नहीं कर बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। बट आपने जो हमारा आई ओपनर था वो कि भाई हम लोग बिना स्टोन्स और उसके भी वास्तु में चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपने लास्ट में जो टिप्स आपके दी है वो तो आई थिंक सभी ने कर लेना चाहिए। एंड वो तो इतनी इजी टिप्स है कि कोई भी अपने घर में वो चीज कर सकता है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, इजीली और बहुत अच्छी तरीके से। और आपने जिस तरीके से उसका एक्सपीरियंस लिया हुआ है, शायद वो छोटी छोटी टिप्स करने से हमारा वास्तु में जो भी दोष है या रेमेडीज है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही फिर कहा आपने। हमारे जी, पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बिल्कुल तो जी, मैं बिल्कुल। रोटोरियन विकास को इनवाइट करता हूं टू जी। टेक ओवर फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। रोटोरियन विकास। या गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। मैम बहुत अच्छा आपने बताया हम लोगों को एंड Thank वी आर you. रियली हैप्पी। कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जी, वो जी। आपसे पूछना चाहेंगे। जी। जैसे किसी के रेंटेड प्रॉपर्टी होती है जी। तो उसमें क्या करना चाहिए, मतलब रेंटेड प्रॉपर्टी में क्या सॉल्यूशंस रहते हैं? देखिए विकास, जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी कोई भी हो, आप अगर उसमें रह रहे हैं, कोई भी जगह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 40 दिन से 3 महीने के अंदर उस प्रॉपर्टी का असर आप पे होना शुरू हो जाता है। तो रेंटेड प्रॉपर्टी है चाहे अपनी है, अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पे आपका असर होगा ही होगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं ऐसे वास्तु में स्पेशलाइज करती हूँ जो कि बिना स्ट्रक्चरल चेंज के, बिना तोड़ फोड़ के, जिसमें हम रेमेडीज पा सकते हैं। तो ऐसी रेमेडीज बिल्कुल हैं जो कि आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप उस प्रॉपर्टी से मूव करें तो वो चीजें आप हटा सकते हैं या अपने साथ ले जा सकते हैं। तो रेंटेड प्रॉपर्टीज में भी वास्तु अप्लाई होता है और उसके भी सॉल्यूशंस 100% हैं। थैंक यू। थोड़ा टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लूंगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्या वास्तु दोष और जन्मपत्रिका के ग्रह के दोष को रिलेट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं? देखिए वास्तु और ज्योतिष का कनेक्शन जरूर होता है, बिल्कुल होता है, पर जैसे कि पत्री आपकी इंडिविजुअल है और वास्तु जब अप्लाई होता है, जब हम घर पे अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, मतलब एक परिवार या किसी ऑफिस में करते हैं तो उसमें सब लोगों का वो कनेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं वास्तु और पत्रिका जरूर लिंक करती है, पर ये कहना कि वास्तु के लिए पत्रिका होना एक कंडीशन है, ऐसा नहीं है। बिना पत्रिका के भी हम वास्तु अप्लाई और उसको रेक्टिफाई बिल्कुल कर सकते हैं। जी 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 मैम, थैंक यू। जैसे अब देखते हैं हम लोग कि सिटीज में हाई राइज अपार्टमेंट्स रहते हैं, तो बिल्कुल। किसी का फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे होगा, किसी का 10th फ्लोर पे होगा, तो वास्तु के इम्पैक्ट सेम आते हैं या थोड़ा कुछ डिफरेंस आता है? नहीं, बिल्कुल सेम आते हैं जी, बिल्कुल सेम आते हैं। हाइट हैज नो कनेक्शन विद दिस। ओके ओके मैम, थैंक यू। अब कई लोगों के जो घर हैं ये ऑफिस मतलब मंदिर या हॉस्पिटल के पास में रहते हैं, तो जी। उसमें क्या कहीं कोई वास्तु दोष होता है या कैसा रहता है? देखिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, जिसमें मैंने ये रिसर्च की थी हमने कि जो क्लासिक टेक्स्ट है उनमें लिखा हुआ है कि जी मंदिर के पास सामने या अस्पताल के सामने घर नहीं होना चाहिए। उसके पीछे कारण ये क्या था कि जी अस्पताल में लोग बीमार ही जाते हैं, तो जर्म्स वगैरह आपके घर में आ सकते हैं, या मंदिर में जाके हम अक्सर रोते हैं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं परेशान, मैं दुखी, तो एक नेगेटिविटी एसोसिएट की गई है। पर ऐसा नहीं है, हमने भी रिसर्च की थी हाल ही में, उसमें हमने देखा ऐसा नहीं है। आप जहां रह रहे हैं उस घर का वास्तु कितना कंप्लायंट है ये बहुत जरूरी है, इसके बजाय कि मेरे सामने या मेरे पीछे या मेरे अगल बगल में क्या हो रहा है। जी, मतलब अगर हमारा घर वास्तु कंप्लायंट है तो हम मंदिर या हॉस्पिटल के पास भी रहें बिल्कुल, तो कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। जी। जैसे अब कई प्रॉपर्टीज में बेसमेंट होते हैं, तो जी। क्या बेसमेंट प्रॉपर्टी हमने रखना चाहिए या क्रिएट करना चाहिए बेसमेंट? बिल्कुल जी, बिल्कुल रखना चाहिए, रख सकते हैं, बेसमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर शहर जो है वो पूरा वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। और आप लोग अगर जयपुर गए हों, जो लोग जिनको पता है, जयपुर में जो पुरानी सिटी जो है वो उस पूरा बेसमेंट है, बल्कि मैंने कई जगह वहां पे वास्तु किया है तो वहां डबल बेसमेंट है, मतलब बेसमेंट के नीचे भी लोगों का बेसमेंट है। तो ऐसा नहीं है। और जयपुर सिटी जो है, एक सर्वे हुआ था उसमें हैप्पी सिटीज ऑफ इंडिया था, तो सबसे पहला नाम जयपुर का था और दूसरा पुणे का था। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ यही है कि सही दिशा होनी चाहिए, कहाँ पे बेसमेंट कितना होना चाहिए, इस पे निर्भर करता है।
हम अगर वास्तु फॉलो करते हैं तो बेसमेंट में भी कोई आपत्ति नहीं होती। नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब जैसे किसी का जो मकान है, घर है, जी, वो 3 फ्लोर का है, 4 फ्लोर का है, तो जी, उस घर का जो कर्ता पुरुष है, मुखिया है जो हम कहेंगे, जी, जी। तो उसने कहाँ रहना चाहिए, किस फ्लोर पे रहना चाहिए और किस डायरेक्शन में रहना चाहिए? अच्छा, किस डायरेक्शन में रहना चाहिए? देखिए, डायरेक्शन तो जी साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली के लिए होता है। किस फ्लोर में, अगर आप, ये आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से है कि आप किस फ्लोर में रहना चाहें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई फ्लोर बेहतर है या कोई फ्लोर खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये कहना कि ये दिशा अच्छी है, ये दिशा खराब है, ऐसा नहीं है। सेम चीज फ्लोर के साथ भी अप्लाई होता है कि ये फ्लोर अच्छा है या ये फ्लोर खराब है, ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि जी बेटे को नीचे के फ्लोर पे रखें, हम ऊपर रहें तो हमारा होल्ड रहेगा बच्चे पे। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल कहीं से क्रिएट की हुई कहानी है। ओके मैम, थैंक यू। उसके बाद जैसे कई लोग के जो प्लॉट होते हैं ये जी। टी पॉइंट या डेड एंड के पास में होते हैं, जी। तो क्या उसमें कहीं कोई वास्तु का इम्पैक्ट आता है? हाँ, देखिए, टी पॉइंट के पास के जो प्लॉट्स हैं उनमें थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ता है। हालांकि इस पे भी हमने रिसर्च की थी, तो कई लोगों के केस में टी पॉइंट वाले प्लॉट्स का नुकसान नहीं हुआ था। पर जनरली जो है वो टी पॉइंट के जो प्लॉट्स होते हैं उनमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो उसकी रेमेडीज हैं जो कि की जा सकती हैं। पर यदि आपको चूज करने का मौका मिले तो आप टी पॉइंट वालों प्लॉट को अगर थोड़ा अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। अब जैसे जो ड्रेनेज वाटर होता है, सिवर लाइन होती है, ये कहाँ जी। होनी चाहिए और उसका जो वाटर फ्लो होता है वो किस जी। डायरेक्शन में होना चाहिए? देखिए, वेस्ट में या साउथ वेस्ट, वैसे वेस्ट और साउथ वेस्ट जो है उस जगह पे अगर हो, या साउथ साउथ वेस्ट में हो, तो वहां जो है वो बेटर रहता है ड्रेनेज। नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में जो है वो ड्रेनेज, गंदा पानी उधर नहीं होना चाहिए। जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या पानी स्टोरेज के लिए है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ या ईस्ट बेटर रहता है। हार्वेस्टिंग का जो स्टोरेज है ये हमने जी। नॉर्थ ईस्ट में हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी जी। अब जैसे घर में स्टेयरकेस होती है, अगर 2 फ्लोर का 1 फ्लोर का है, जी। वो स्टेयरकेस घर में कहाँ होनी चाहिए और उसका जो रोटेशन होता है जी। वो किस तरह से होना चाहिए? देखिए सर, स्टेयरकेस, अब ये तो एक तो लॉजिकल भी हमें देखना पड़ेगा, वास्तु तो है, लॉजिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि स्टेयरकेस की रिक्वायरमेंट कहाँ से। अब घर का फेसिंग मान लीजिए कुछ हो, वास्तु कह रहा है जी नहीं, पीछे की तरफ तो स्टेयरकेस हम कर नहीं सकते, हमें एंट्रेंस पे ही स्टेयरकेस देनी होगी। तो इन दैट केस जो डायरेक्शंस हैं स्टेयरकेस के, उनके हिसाब से उनका मूवमेंट होता है। जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, अगर ईस्ट और साउथ ईस्ट में है तो क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो स्टेयरकेस आप कहीं भी रख सकते हैं, पर हाँ, उनकी दिशाएं दी हुई हैं कि किस दिशा में क्लॉकवाइज होनी चाहिए और किस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। थैंक यू। अब जैसे कई लोग घर के मेन डोर पे कुछ गणेश जी रखते हैं, कई लोग स्वस्तिक रखते हैं, तो घर की जो पॉजिटिविटी है, उसकी जो एनर्जी लेवल, ये अगर हमको जी। बढ़ाना है तो हमने मेन डोर पे क्या रखना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? देखिए, मेन डोर पे बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, गणेश जी तो विघ्न हरता है, गणेश जी को तो कहा ही जाता है जो भी बात है। तभी हमारे उसमें हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं या गणेश जी को स्थापित करते हैं, इसीलिए कि जो भी कोई बाधा आए हमारे कार्य में वो खत्म हो जाए। तो गणेश जी को स्थापित करना तो बहुत ही अच्छी बात है। गणेश जी तो आपका घर किसी भी दिशा में हो, आप गणेश जी को बिल्कुल स्थापित करिए। स्वास्तिक भी बहुत अच्छी चीज है, स्वास्तिक भी लगाइए, उससे बंधन वार भी लगाएं। बंधन वार जो है, जिसको आप लोग तोरण भी कहते हैं, तोरण जो अगर आप लगाएं तो फ्रेश पत्तों का ही लगाएं, फ्रेश फूलों का ही लगाएं, और जब वो सूख जाए तो उनको हटा दें। ये नहीं कि इस दिवाली लगाया और फिर अगली दिवाली हट रहा है, ऐसे ना करें। और अगर आप मान लीजिए फ्रेश उसका नहीं लगा रहे हैं तो प्लास्टिक का मत लगाएं, लेदर का ना लगाएं, जैसे मोती हो गए या सैटिन हो गया, ऐसी चीजों का, नेचुरल चीजों का अगर लगाएंगे तो वो बेहतर रहेगा। जैसे मेन डोर जो होता है, इसमें जो गणेश जी हैं, ये हमने मतलब घर के डोर के बाहर लगाना चाहिए या अंदर की तरफ लगाना चाहिए? गणेश जी की कहानी सुनी है ना हमने, कि पार्वती जी ने उनको कहा था बाहर बैठो मेरी रक्षा करो। तो गणेश जी जो है वो द्वारपाल हैं, उनको घर के बाहर ही बिठाना चाहिए। जी। मैम, अभी हमारे कुछ रोटरी से, हमारे कुछ रोटेरियंस का कुछ क्वेश्चंस थे, वो 2-4 मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बिल्कुल। रोटेरियन मेघना जी पूछ रही हैं कि हाउ कैन साउथ ईस्ट मेड स्ट्रॉन्ग, मतलब साउथ ईस्ट को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए मेघना जी, पहले तो ये बहुत जरूरी है कि साउथ ईस्ट क्या आपका कमजोर है,
अगर आपका कमजोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग करिए ना। अगर आपका मान लीजिए कमजोर नहीं है और आप उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बोला कि साउथ ईस्ट रिकवरी का जोन है, साउथ ईस्ट आग है, पैशन है, मेरे काम करने की डिजायर है, अगर आप उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो आप में डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप हर वक्त सिर्फ पैसा 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 ही सोचते रहोगे। जीवन का एक पहलू है पैसा, सब कुछ ही पैसा नहीं है। तो अगर कोई जोन अगर आपके घर में एक्सेस में बढ़ा हुआ है तो उसका नुकसान भी होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रही थी बैलेंस, बैलेंस, हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। जैसे मैंने कहा पानी 72% है, 75% भी नुकसान करेगा, 70% भी नुकसान करेगा। जो बैलेंस है वही जरूरी है। तो इसके लिए पहले मेघना जी ये देखना जरूरी है कि साउथ ईस्ट कमजोर है क्या। अगर कमजोर है तो स्ट्रॉन्ग करें, अगर कमजोर नहीं है तो प्लीज उसको मत छेड़िए। थैंक यू। उसके बाद हमारे रोटेरियन असद मर्चेंट है, उनका क्वेश्चन है कि साउथ ईस्ट में उनने ड्रिंकिंग वाटर का कुछ स्टोरेज करके रखा है, तो क्या वो वहां रखना चाहिए या हटा देना चाहिए? देखिए वैसे तो सर वो हटा देना चाहिए वहां से। जैसे मैंने कहा साउथ ईस्ट जो है वो फायर कोन है, पर अगर आपने रखा हुआ है और कोई ऑप्शन नहीं है तो उसकी रेमेडी बिल्कुल है। उसके लिए सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझसे पर्सनल लेवल पे टच बेस करें, क्योंकि मैं पूरा फ्लोर प्लान समझ के फिर आपको उसकी रेमेडी बिल्कुल बता सकती हूँ। तो उससे परेशान मत होइए, उसका सोल्यूशन बिल्कुल है। जी जी। तो मैम दूसरे हमारे रोटेरियन नीतू जी अग्रवाल है, वो चाह रहे हैं उनको ऑफिस शिफ्ट करना है, बट उनको ऑफिस जो पसंद का है वो मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसी क्या रेमेडी एग्जिस्टिंग ऑफिस में करे जिससे उनको एक अच्छा ऑफिस मिल जाए? नीतू जी इसके लिए भी मैं आपसे कहूंगी कि आप एक बार मुझसे बात कर लें, मैं आपको बिल्कुल इसकी भी रेमेडी है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। उसके बाद असद जी का एक और क्यूरी था कि साउथ वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ है, तो उसमें हमने क्या करना चाहिए? साउथ वेस्ट कॉर्नर अगर आपका कटा हुआ है तो उसको एक्सटेंड करना चाहिए हमें। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर जो भी आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर आ रहा है वहां पे येलो रंग का कलर जरूर लगाएं, येलो पेंट जो है वो जरूर वहां पे लगाएं। वहां पे क्या कहते हैं गोल्डन कलर की चीज वहां पे रखें वहां, तो उससे जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो ज्यादा एक्सटेंड होगा। अर्थ एलिमेंट जो है वहां पे आपको बढ़ाना जी। उसके बाद हमारे रूटीन प्रीति चांडक है, कुछ 2-4 क्वेश्चंस बचे हैं मैम, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, 2-4 क्वेश्चंस है। रोटेरियन प्रीति चांडक पूछ रहे हैं कि माय बेडरूम विद बाथरूम इज इन साउथ वेस्ट, डज इट अफेक्ट आवर वर्क और बिजनेस? ये तो प्रीति जी आप बताइए, आपको लग रहा है कि आपका काम इफेक्ट हो रहा है? देखिए जैसा मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रही हूँ कि एलिमेंट कम हुआ तो ये हुआ, उसके सिम्टम्स भी तो हमें होने चाहिए ना। मान लीजिए कि आपका जो है साउथ ईस्ट कटा हुआ है या कम है, पर आपके पेमेंट की रिकवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जब प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो फिर हम क्यों उसको छेड़ें, राइट? सो सेम चीज अप्लाई करती है आपके केस में कि अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके काम में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसकी रेमेडी करते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो फिर क्या जरूरत है उसको छेड़ने की। एक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे रोटेरियन राजा शेखरन जी का। उनका कहना है कि हम वास्तु फॉलो करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, हम सारे हमारे जो रिलीजियस हमारे कस्टम्स है उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, स्टिल वी आर बैकवर्ड। और दुबई और बाकी हम कई कंट्रीज देखते हैं, सिंगापुर देख रहे हैं, तो दे आर मच मोर फॉरवर्ड। तो क्या डिफरेंस है कि वो लोग आगे और हम पीछे? मैडम देखिए पहली बात तो सिंगापुर जो कंट्री है ना वो पूरी वास्तु के हिसाब से बनी हुई है, राइट? और सेकेंडली सर हम बैकवर्ड किस केस में मानते हैं? सिर्फ पैसे के केस में, कि दुबई जो है उसके पास पैसा है तो इसलिए वो फॉरवर्ड है और हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम फॉरवर्ड नहीं है। ये सोच तो बिल्कुल गलत है सर। हमारे पास बहुत धन है, ये है ना, हम जैसे वास्तु के केस में हम वैल्यू ही नहीं करते हैं चीजों को। हमारे कल्चर में इतनी चीज है, वही हल्दी वाला दूध पी पी के हम बड़े हुए। अब जब यूएस कह रहा है अमेरिका उसको टर्मरिक लाते करके 250 पाउंड का बेचता है तो वो बड़ी बड़ी चीज हो जाती है। तो सर हमारे शास्त्रों में हमारे पास खजाना है, हम उस खजाने की वैल्यू ही नहीं करते हैं। हमें लगता नहीं वो जो पैसा, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या जो डायमंड्स हैं वही पैसा है, वो बिल्कुल पैसा नहीं है। भारत सोने की चिड़िया जो है सिर्फ पैसे के लिए नहीं थी, वो अपने कल्चर के लिए भी। और हमारे पास कल्चर है, वैल्यूज हैं, हम बहुत अमीर है सर। सही बोल रहे हैं मैम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम। जस्ट नाउ आई हैंड ओवर माय माइक टू प्रेसिडेंट योगेश जी टाउरी। थैंक यू।
We had a very wonderful session. Thank you, sir. Pleasure is mine. एंड इसको यादगार बनाने के लिए हम मेमेंटो मैडम को देंगे अभी। Thank you. आपके बिहाफ पे हमारे रोटेरियन राजेश जी लोंडे उसे लेंगे और जल्द फिर ये हम आप तक अपना कोरियर से पहुंचा देंगे। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. And friends, we are now to the end of the program. On behalf of Rotary Club of Nagpur Ishanya, I would like to express my gratitude to Mrs. Riddhi Bahelji, renowned Vastu consultant and astrologer, for joining us online all the way from Delhi and explaining to us the significance of the ancient science of Vastu for a healthy and a prosperous life. Thank you so much, Riddhi ji. Thank you. It was an enlightening experience listening to you. I would also like to thank the project directors of the event, Rotarian Vikas Binjani, Rotarian Rajesh Londe, and Rotarian Manoj Rathi, whose keen interest and innovative ideas helped us organize such a wonderful event. It was the precise working and expertise of our technical advisors, handled by Rotarian Ashish Chandak and Rotarian Rushabh Shah, which made this event smooth and flawless. Thanks Ashish ji and Rushabh ji. I owe my sincere thanks to Rotarian CA Astha Agrawal, who is committee chair public relation, for her support and coordination. I also acknowledge the presence of all my past presidents who joined us for the session. Lastly, I also thank to all my Ishanyans and other guests who joined us for this program and made it successful. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.